Hello everyone. In the last video we have done some basics of inequalities in a triangle, right? We have done the 4 parts. First part was in a triangle angle opposite to the longer side is greater, and second was its converse, side opposite to the greater angle is longer. बड़ी साइड के opposite angle बड़ा, बड़े angle के opposite side बड़ी. Third, in a triangle sum of two sides is always greater than the third side. And the fourth we have done regarding the exterior angle theorem. Exterior angle theorem, in a triangle an exterior angle is greater than either of its interior opposite angles. These are some inequalities in triangles which we are going to use in this worksheet. Now let us start this worksheet. In this worksheet 7.4 I am talking about. In this worksheet the very first question is prove that in a right angle triangle hypotenuse is the longest side. This concept we know from class 7 onwards. Class 7th में हमने सबसे पहले Pythagoras theorem पढ़ी है, and in that class we have also studied that hypotenuse is the longest side in a right angle triangle. Now we are going to prove it. So let us see how to prove this result. Let us make first of all a right angle triangle. Name it ABC. Right. So let's write given n to prove. What is given here? In triangle ABC is right angled at I have kept it at B. Which is the hypotenuse? जो right angle के सामने वाली side opposite to the right angle, that is hypotenuse. So which is that here? AC. What we need to show? AC is longest. अब इस concept को हम 7th class से जानते हैं कि hypotenuse is the longest side in a right angle triangle. Now we are going to prove it कि how it is so. ठीक है, क्योंकि इसमें inequalities का concept use होता है और ये concept 9th में introduce होता है. ठीक है, so that's why the proof is in 9th class. Now let us prove it. Proof. The very first thing, in a right angle triangle there is one right angle. What about the other two angles? These two are acute angles और इनका sum कितना होता है? What is the sum of two acute angles? That is 90 degree. राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री. कैसे प्रूव कर सकते हैं? सिंपली अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी. यू विल गेट दैट दीज टू एंगल सम इज 90 डिग्री. सो लेट्स डू इट नाउ. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज 180 डिग्री. दिस इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एंगल बी की वैल्यू डाल दें 90 डिग्री, 180, 90 को उधर ले जाएं, 180 माइनस 90, व्हाट इज 180 माइनस 90? दैट इज 90 डिग्री. मीन्स कि एक एंगल 90 का है तो बाकी दो एक्यूट एंगल्स जो हैं उनका सम 90 का है. उनका सम 90 मतलब कि दे आर एक्यूट एंगल्स. वी कैन से दैट इज angle A and angle C are acute angles. Remember one thing, what are acute angles? Acute angles are those whose measure is less than 90 but greater than 0. 90 डिग्री से छोटा एंगल. ठीक है, अब now in triangle ABC, see what I do. I say angle B is greater than angle A, isn't it? Angle B राइट एंगल 90 डिग्री का, एंगल ए एक्यूट एंगल 90 से छोटा है तो ये वाला एंगल इससे बड़ा हुआ. अब करते हैं यूज कंसेप्ट का कि बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड बड़ी होती है. एंगल बी के ऑपोजिट साइड AC, सो देयरफॉर AC इज लॉन्गर देन एंगल ए. एंगल ए के ऑपोजिट साइड BC. ठीक है, रीजन देना पड़ेगा बिकॉज साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इन अ ट्राइंगल इज लॉन्गर. ठीक है, रीजन जरूर देना है. टेक इट नंबर 1. अब दूसरा कंसेप्ट फिर से ऑल्सो. अभी मैंने क्या किया था? आई हैव कंपेयर्ड एंगल बी विद एंगल ए. नाउ आई विल कंपेयर एंगल बी विद एंगल सी. ठीक है, सो कौन बड़ा? ऑब्वियसली ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये वाला बड़ा. नाउ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल C.
ठीक है, दिस वी नो। फिर से वही कंसेप्ट, बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड बड़ी, एंगल बी के ऑपोजिट साइड ए सी, लॉन्गर देन एंगल सी के ऑपोजिट साइड ए बी, इसको कर देना सेम रीजन एज गिवन अबव। अब देखना व्हाट वी गेट नाउ। फर्स्ट में हमने प्रूव किया ए सी बी सी से बड़ी है, सेकेंड रिजल्ट में हम ये बता रहे हैं ए सी ए बी से बड़ी है। इस राइट ट्राइंगल में तीन ही तो साइड्स होती हैं, ठीक है। अब ए सी बी सी से भी बड़ी, ए सी ए बी से भी बड़ी, मतलब ये जो साइड ए सी है हाइपोटेन्यूज है, ये बाकी दोनों साइड से बड़ी है। अगर 3 में से ये बाकी दोनों से बड़ी है तो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज द longest one. So this implies we can say from 1 and 2 we can mention what we can conclude that AC is longest. This is the proof that how and in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. Now we'll take question number 2. Question number 2 क्या है? There is a triangle ABC, ठीक है। In this triangle, the two sides AB and AC are produced. Produced means extended. AB is produced to some point P and AC is produced to some point Q. ये दिया है, एक चीज़ और दी है, and angle PBC ये वाला is smaller than angle QCB. This is what we are given. और प्रूव करने को क्या बोला है? That AC is longer than AB. देखो मैं इसी से given and to prove निकाल देता हूँ। ये मेरा हो गया given, ठीक है, और ये हो गया to prove। यहाँ मैं show that काट देता हूँ। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करना है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हमने यूज करना है उस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखना, सी व्हाट आई डू, अभी सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं कर रहा मैं इसका। इफ आई हैव a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस कंसेप्ट को समझना है क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कंसेप्ट इज। इफ आई हैव a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मीनिंग क्या हुआ? इफ द सम ऑफ टू नंबर्स is equal to sum of other two numbers, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज a और b का सम है 100, तो ऑब्वियसली इक्वल है, तो x और y का सम भी कितना आ गया? 100। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ईजी भी है, ठीक है। वेरी केयरफुली, इफ a प्लस बी एंड एक्स प्लस वाई, दो का सम किन्हीं और दो के सम के इक्वल, मैंने एग्जाम्पल के लिए 100 ले लिया, तो ये भी ऑब्वियसली 100 आएगा। अब लेट अस टेक से a is 70, इफ a is 70 यू नो सम 100 है, तो b ऑब्वियसली कितना होना है फिर? इट इज 30, सिंपल, ठीक। अब x को असाइन करते हैं कोई वैल्यू, सेम मत लेना, सेम वैल्यूज नहीं लेनी, यही वाली वैल्यूज नहीं लेना है, ठीक है। इसको ले लेता हूं मैं से x को लेता हूं 40, ठीक। इफ x is 40 then what y is? To get the sum 100, you know that it will be 60, ठीक है। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखना ध्यान से, क्या हम कंक्लूड करने वाले हैं यहाँ से। इसका फर्स्ट नंबर लेफ्ट हैंड साइड का a, इसका फर्स्ट नंबर राइट हैंड साइड का x, इनको कंपेयर करते हैं। सी कंपैरिजन करना मतलब ये देखना कि क्या वो दो चीज़ें इक्वल हैं या कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये चीज़ देखनी होती है कंपैरिजन में, ठीक है। फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करो, 70 40 से कंपेयर करो, कौन बड़ा है? 70 बड़ा है। हियर 70 इज ग्रेटर देन 40, इट्स वेरी ऑब्वियस, नो नीड टू प्रूव इट, ठीक है। लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर राइट साइड के फर्स्ट नंबर से बड़ा है। अब सेकंड को सेकंड से कंपेयर करना। अब ये 30, ये 60, सो दैट मीन्स 30 is what of 60? Smaller than 60. अब कंक्लूजन क्या है, समझने वाली बात क्या है, अब देखना ध्यान से। लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर राइट साइड के फर्स्ट नंबर से बड़ा था। अगर फर्स्ट नंबर बड़ा है लेफ्ट साइड का तो सेकंड छोटा होगा, ये ध्यान रखना। देन हियर इज स्मॉलर देन सेकंड नंबर ऑफ राइट हैंड साइड। सो कंक्लूजन इज, तभी ये बैलेंस होगा। अगर फर्स्ट बड़ा है सेकंड भी बड़ा होगा तो इक्वल नहीं होंगे, लेफ्ट हैंड साइड फिर बड़ी हो जाएगी राइट हैंड साइड से। तो बैलेंस कब करना है?
जब एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, वो इक्वालिटी बैलेंस तभी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से बड़ा है तो सेकंड से ऑब्वियसली छोटा होना है, एक बड़ा दूसरा छोटा, बस इतना याद रखना। हियर वी कैन कंक्लूड दैट इफ, अब मैं नंबर्स को छोड़ता हूं, अभी नहीं को लेता हूं, इफ a इज ग्रेटर देन x देन व्हाट b विल बी ऑफ y, b y का क्या होगा, लेफ्ट पहला नंबर बड़ा था तो दूसरा नंबर क्या होना है, छोटा, देन b विल बी स्मॉलर देन y। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। या उल्टा भी मैं बोल सकता हूं दैट इफ a इज स्मॉलर देन x, अगर लेफ्ट का पहला नंबर राइट के पहले नंबर से छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा। ठीक है, देन b विल बी ग्रेटर देन y, ये ध्यान रख लेना है प्लीज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केस ऑफ इक्वालिटी। अब देखना ध्यान से, सी मैं एंगल्स की नंबरिंग करता हूँ 1 2, और इसका ये वाला एंगल ले लेता हूँ 3, और इसका ये वाला एंगल ले लेता हूँ 4। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। 1 and 3 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, सम 180, 2 and 4 फॉर्म लीनियर पेयर, सम 180। यहाँ लेता हूँ नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, दिस इज बाय लीनियर पेयर, and angle 2 plus angle 4 equal to 180, this is by linear pair। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। लेट अस कंपेयर द टू इक्वेशंस, कंपैरिजन करना। सी द राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, इफ टू इक्वेशंस हैव देयर वन साइड इक्वल देन अदर ऑटोमेटिकली बिकम्स इक्वल। यहाँ कौन सी इक्वल है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो व्हाट वी कैन से, द लेफ्ट हैंड साइड वुड आल्सो बी इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 राइट हैंड साइड इक्वल मेक्स लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल आल्सो। एंगल 1 plus 3 इक्वल्स टू एंगल 2 plus 4। अब देखना जो गिवन है, गिवन क्या था, PBC लेस देन QCB। मैं इनको नंबर्स की फॉर्म में लिख दूं। PBC क्या था, मैं नंबर दिया PBC को, एंगल 1 इज स्मॉलर देन एंगल 2, ये हमें गिवन है। सी लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट नंबर और राइट हैंड साइड के फर्स्ट नंबर से क्या है गिवन, स्मॉलर। एंगल 1 इज गिवन स्मॉलर देन एंगल 2, मैंने नंबरिंग कर रखी है एंगल्स की। ठीक है, एंगल 2। सो व्हाट दैट गिव्स अस फर्दर, दैट गिव्स अस दैट एंगल 3 विल बी व्हाट ऑफ एंगल 4, पहला स्मॉलर है तो दूसरा फिर ऑब्वियसली छोटा होगा। अब ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे आते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब आपने नहीं करना कुछ भी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी सारा फिगर मैं रब करता हूँ। क्या दिखा कि एंगल 3 एंड एंगल 4 इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, एंगल 3 एंड एंगल 4 बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड बड़ी होती है। एंगल 3 इंटीरियर एंगल है, 4 भी इंटीरियर एंगल, एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4, दैट मीन्स बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड, 3 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, AC, दैट इज AC, लॉन्गर देन 4 के ऑपोजिट AB, दैट इज AB। ठीक है, रीजन दे देना, बिकॉज इन अ ट्राइंगल साइड ऑपोजिट टू longer, greater angle is longer, greater angle is longer। ठीक है, this is the proof of this question।